Excuse me, sir. Hi everyone, good evening. Sir, good evening, sir. So, जो आपने लेक्चर भेजे थे आप वही पढ़ाने वाले हो ना आज? थोड़ा सा रुको पार्थ, ठीक है? Okay, sir. होल्ड ऑन फॉर सम टाइम, मैं डिस्कस करता हूँ. लेट एवरीवन जॉइन इन. Yes, sir. ठीक है. हाय, गुड इवनिंग सानिका, गुड इवनिंग हर्ष, गुड इवनिंग प्रथमेश. सर आज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर? दोनों दोनों. थोड़ी देर वेट करो till the time others are joining in. फिर मैं समझाता हूँ हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करेंगे. एंड इन द मीन टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर लो. All right. So yeah, I think most of the students have joined in now. Great. So before we start our today's discussion, I think I didn't realize in the last class when I made the announcement कि हम लोग periodic properties chapter start करने वाले हैं. Many of the students had left the session. So today I got, in fact today नहीं, yesterday I got some questions from students that they missed out on that announcement bit. Now, what I will quickly recap is that towards the end of last class, मैंने बोला था that next week, that is today, we are going to start with the next chapter, that is periodic properties. And when we are going to start that chapter, we are going to follow a slightly different methodology from what we have been doing. And in that new methodology,
what I will be doing is I'll be sharing the recorded lectures with you upfront, so that you can study from those video recordings as per your time, as per your convenience, and make notes. And then when we are in the live session, on the Zoom session, we can rediscuss those concepts, those topics that were covered, and move a bit faster, right? Because honestly speaking, in the live sessions, the Zoom sessions that are happening, the speed is quite slow. Like जैसे atomic structure को almost कितना अभी over a month हो गया है, more than a month in fact, and we did cover the details, we did get into a lot of details of the chapter, and that is why it took a lot of time also. Plus मुझे थोड़ी सी कहानियां सुनाने का भी शौक है, मतलब can't help it, otherwise it becomes very monotonous. So in order to have this different approach or different methodology, this is something that I'm going to adopt for this particular chapter called periodic properties. अब chapter जो है वो वैसे भी थोड़ा theoretical है, ठीक है, उसमें problem solving कम है and information ज़्यादा याद रखनी है. So that in fact makes the chapter a little bit more laborious and lesser interactive as compared to say atomic structure या mole concept that we did. So the methodology would be that we will adopt is we will go through those lecture recordings, those studio recordings first, make those notes, ठीक है, जो भी वहाँ पे बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, and then we'll have these live sessions for discussing doubts, discussing or reworking on those important concepts, and solving some interesting questions. Okay. Now, in order to have this approach or have this methodology work, I need all the students to be on the same page. What I mean by this is that this approach cannot work if you come to the live Zoom class without working on those recordings first, without watching those YouTube lectures first. Then I will have two set of students in the session, those who have already studied the concept and those who have no idea about it. Then in that case, it is like promising day and night at the same time, which cannot happen. So I would then be faced with a dilemma that how to proceed with this. Okay. So this is something which I would like everyone to be aware about, that it is an important task for you to watch those recordings before you sit in the lecture. Okay. So today आज के lecture में I would not start periodic properties chapter because the inquiries that I have got, I am not sure if every one of you has or has been able to see the recordings. How many of you have been able to see the recordings and make notes? All right, and good, great. And how many of you have not seen or partially seen? ओके, ठीक है, पार्शियली वाले भी हैं. हाँ, ओके, ठीक है. So there are good students also who have not seen the videos completely. Okay, ठीक है. So this is what I am talking about, that
please bear this in mind that you will have to be on the same page, right? It is like missing a lecture and then not covering up and then coming for the next lecture. तो आपको पिछले lecture में क्या हुआ उसका हवा नहीं लगेगा, ठीक है? Now from my side I will try to ensure that मैं आपको उतना ही recording या उतना ही भेजूं information which is something that you should be able to do within the span of the next class. Okay? If you are able to get that done during that time, so फिर everyone will be on the same page and will be able to start the discussion properly. Okay? So let me take today's class as an exception. ठीक है, आज मैं periodic properties का एक introduction आप लोगों के साथ में start करूंगा. ठीक है, towards the second half of today's lecture I am going to talk about periodic properties and give some context to it. However, जो concepts मैंने lecture में या recording में आपके साथ में discuss किए हैं वो मैं आप लोगों को definitely दोबारा बोलूंगा. अगर आपने partially देखे या पूरे नहीं देखे तो make sure that you watch them and make notes. ठीक है, it is very very important for you to make notes also. ऐसा नहीं कि recording आ गई हमने download करके save करके रख ली, अब future में refer कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी. If you will do that, then you will have a lot of backlog. Make sure that you make those notes right away as you are watching those recordings. ठीक है, all right. So I hope everyone is clear on this. Do you have any particular doubt which you would want to talk about and discuss with the entire class? So let me know. You can raise your hand. All right. I'll take that as a no. Then I think I was pretty clear in terms of the message that I wanted to communicate. So today we are going to continue with atomic structure, and towards the end of the lecture, I'm going to also talk about periodic properties and how you have to approach the chapter. Okay. Now, let me take a quick recap from what we did in the last class and do a couple of questions. So in the last class हम लोगों ने graphs के ऊपर focus किया था, and we discussed 3 types of graphs for orbitals of hydrogen atom. We discussed amplitude versus radius का graph. We discussed probability density versus radius का graph, or versus the distance from the nucleus, you can say. And we also did radial probability distribution curve, which is the graph of r square into 4 pi r square versus r, जो कि इस question में भी है. ठीक है, this graph gives you the probability of finding electron, but how? As area under the curve. ठीक है, as area under the curve you get the probability of finding electron. ठीक है, now how to draw these graphs for different orbitals, ये मैंने आप लोगों को बताया था that there is one way in which you can draw these graphs, and that crude way is that if you have these wave functions, ठीक है, ये जो different orbitals के wave functions आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप लो plot करो और graph draw करना शुरू कर दो. ठीक है, you take the values of r and plot them out, and you will have the graph ready in front of you. ठीक है, or the other thing was that I taught you certain pattern that are found in these graphs, certain tricks to help you draw these graphs for different orbitals. Okay. Now, it was something that takes time. It is something that you have to rewatch and revise so that you are able to understand that what is the pattern here, and if given any random orbital, how you can draw the 3 graphs that are there for that orbital. Okay. Now, assuming that आप लोगों को last class में समझ में आया था, so इस question का आंसर आप दोगे for a 4d electron.
right? Most of you have also given the correct answer, right? नहीं, हर्ष आपका गलत है, बाकी सानिका नहीं, सानिका ने हाँ करेक्ट कर दिया। अच्छा, 2 सानिका है, देयर इज सानिका जी कहाँ से? जी इज फॉर गिरगांव। अच्छा, ओके, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप 4d ऑर्बिटल का देखोगे, 4b ऑर्बिटल के बारे में अब इसमें मैंने क्या क्या चीजें आपको बोला था याद रखने के लिए, दैट हम जब रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे तब मैंने आपको 3 चीजें याद रखने के लिए बोला था। नंबर 1, दैट द ग्राफ विल स्टार्ट एट ओरिजिन, ठीक है, and the second thing was that the graph will approach zero as r approaches infinity, ठीक है, the graph will approach zero, it will not cut the x-axis, it will approach zero as r approaches infinity। and तीसरा चीज जो सबसे important चीज था वो मैंने आपको बताया था that you must focus on radial nodes। so 4d orbital, ठीक है, if you do the n minus l minus 1, 4 minus 2 minus 1, so you are left with 1 radial nodes, राइट? तो एक रेडियल नोड का मतलब क्या होगा, दैट ग्राफ एक बार बीच में एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा। सो यू विल हैव 0 से स्टार्ट होगा, फिर एक बार बीच में 0 होगा, एंड देन फाइनली एज आर अप्रोचेस इंफिनिटी भी 0 होगा, तो इट विल इंक्रीज डिक्रीज एंड देन इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड द हाइट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। सो दिस वाज समथिंग दैट आई स्पोक अबाउट इन द लास्ट क्लास। all right, then यहां पर नोटिस करना एक और क्वेश्चन है, ठीक है। इन दिस रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही ड्रॉ किया हुआ है, आर स्क्वायर इंटू 4πr² वर्सेस आर का ग्राफ है, एंड ये 2s ऑर्बिटल का भी बनाया हुआ है, ये भी आपको बताया हुआ है। सो इफ यू विल नोटिस एनी वन ऑफ दीज, तो वो कैसा आ रहा है, देयर इज वन रेडियल नोड एंड देन इट अप्रोचेस 0, ठीक है। However, what you have been mentioned here, what you have been asked here is that out of these 3 graphs A, B and C, which single electron species will the graph belong to, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये सोचना है या ये नोटिस करना है कि how would the dependence on Z be, तो अगर किसी एटम का Z ज्यादा है, राइट, तो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियर ज्यादा होगा, ठीक है। हायर Z implies electron will be closer to nucleus। So with this in mind, you can see that A, B and C में this should be Li2 plus, it is closest to the nucleus, this should be helium plus, and this should be hydrogen atom, which matches with C option, right। so यहाँ पर आप नोटिस करोगे ना दैट लिथियम का मैक्सिमा जो है वो छोटी वैल्यू के आर पे आ रहा है, हीलियम प्लस का मैक्सिमा थोड़ा और बड़ी वैल्यू ऑफ आर पे आ रहा है, ठीक है। सी हाइट से फर्क नहीं पड़ रहा, इट इज दिस position where the maxima is coming, which talks about where is the electron likely to be found, and it will be closer for or closer to the nucleus for an atom which has a greater Z। ये समझ में आया? हाँ हर्ष बोलो। सर अगर Z ज्यादा है तो फिर उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी ज्यादा होगा ना? अगर Z ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, हाँ, probability density would be something that is psi square, and psi square में is it proportional to Z? If the answer is yes, then
यस, लेट्स सी. सो हाँ, ये z के प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको यहाँ पर, राइट? यू कैन सी यस दैट सर. r इज प्रोपोर्शनल टू z, तो अगर z का वैल्यू ज्यादा होगा हाँ तो फिर ज्यादा होगा. तो यहाँ पर होगा. बट अब ऐसा नहीं है, एक बार के लिए एक्चुअली हो ये सकता है. इफ यू रिमेम्बर सिग्मा, सिग्मा में भी z फीचर करता है ना. यस सर. हाँ, तो फिर मैं नहीं कह सकता ना. देखो ना, यहाँ पर ये z है, फिर यहाँ अंदर भी z है, और e की पावर में भी z है. हाँ. तो ओ- एग्जैक्टली तो मुश्किल रहेगा मुझे बोलना, until unless I plot and tell you. ओके सर. ठीक है. बट हाँ, as we can see from these graphs, I can infer that ये जो हाइट है वो भी बढ़ रहा है. ठीक है. इफ वी आर गोइंग फॉर अ हायर वैल्यू ऑफ z, तो मे बी the amplitude or the square of the amplitude would also be increasing. ठीक है. All right, then एक और क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो. मैच द कॉलम का. ठीक है. मोर देन वन मैपिंग भी हो सकती है, 1:1 मैपिंग जरूरी नहीं है. हम्म. क्या क्या आंसर आ रहे हैं आपके? ओके, सो पहले ए ऑप्शन के ऊपर चलो एक बार फिगर आउट करते हैं. दैट ए ऑप्शन में पहली बात तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है. ऊपर से स्टार्ट होने का मतलब ये हो गया कि ये एस ऑर्बिटल ही है. ठीक है. देन इसमें यू कैन सी 1, 2, 3 रेडियल नोड्स है. ठीक है. 3 radial nodes are present. So that means this corresponds to 4s. ठीक है. So ये A का you can say P को मैच कर रहा है. अच्छा, then you have the second option, B option, in which psi square 4 pi r square versus ये r का ही ग्राफ है, distance from the nucleus. Now सबका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट करता है, बी इट SPDF. ये वाला ग्राफ साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर वाला, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है एंड इट फाइनली आल्सो अप्रोचेस 0 ओनली. बट यहाँ पे नोटिस करने के लिए क्या है, दैट देयर आर 1, 2 एंड 3 रेडियल नोड्स. ठीक है. दैट इज द catch that I can see in this graph.
एंड ये 3 रेडियल नोड्स किसको करस्पॉन्ड करेंगे? यू कैन सी दैट दे विल करस्पॉन्ड टू, नाउ 4s को भी कर सकता है, 5p को भी कर सकता है, 6d को भी कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए p q s तीनों ही पॉसिबल आंसर्स हैं। ये समझ में आया? बी के लिए p q and s तीनों क्यों आंसर्स हैं? ठीक है, नाउ सॉरी, हाँ, सी ऑप्शन क्या कह रहा है? एंगुलर प्रोबेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन थीटा एंड फाई, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोगों ने देखा है कि इट इज एस ऑर्बिटल्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई, बाकी जो रहेंगे उसमें थीटा एंड फाई आएगा, इट इज ओनली पी जेड एंड डी जेड स्क्वायर जिसमें थीटा आता है, फाई नहीं आता। सो कीपिंग दैट इंफॉर्मेशन इन माइंड, we realize that C के लिए it will be Q and S that will be the correct answer, right? So most of you would have got that also right. ठीक है, and lastly D option में there is no angular node. Angular node किस केस में present नहीं रहता है? It is only in S orbitals that we do not have angular node. So 4s and 3s, P and R both should be the answer. ठीक है, राइट। सो यश ने मुझे दिया था, हाँ यश करेक्ट, आपने दिया एक पूरा का पूरा करेक्ट आंसर। शिवांक ने भी दिया, यस राइट शिवांक, यू ऑल्सो गेव द एंटायर आंसर एज करेक्ट, गुड। हाँ, और प्रथमेश ने भी दिया, ठीक है। हाँ, सो लक्ष्मी, ये वाला जो ग्राफ है ना 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साई स्क्वायर, ये सबके लिए ओरिजिन से स्टार्ट होगा। सो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ पे आप नोटिस करना, इन द लास्ट क्लास जब हम लोग ये तीनों ग्राफ्स का डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था दैट ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, साई स्क्वायर आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेज आर, ये वाला ग्राफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन फॉर ऑल ऑर्बिटल्स। इट वाज psi r versus r that started with a non-zero value for s orbitals, ठीक है, ऑल राइट। एक और क्वेश्चन करना, ठीक है, लेट मी, फिर मैं इस वाले ग्राफ की डिटेल में जाऊंगा थोड़ा सा। ये मुझे एक्चुअली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लिए यूज होगा ग्राफ, इसको थोड़ी सी देर में हैंडल करते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, ठीक है, डिफिकल्ट है बट लेट्स सी इफ यू आर एबल टू डू दिस।
इसमें मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। ऑलराइट, सो कुछ स्टूडेंट्स ने दिया है आंसर। आई थिंक, हाँ, एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ, मोस्टली मुझे भी लग रहा है ऑप्शन ए ही आंसर है, बट आई विल डबल चेक फॉर यू गाइज। हो सकता है सी भी हो, एक बार देखने दो। सो व्हाट इज इट दैट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज जीरो? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज जीरो, इसका मतलब साई स्क्वायर इज जीरो, दैट इज दैट साई इज जीरो। अब साई क्या है यहाँ पर? साई इज द रेडियल पार्ट इनटू द एंगुलर पार्ट, राइट? सो रेडियल पार्ट आपके लिए है 1/2√2 इंटू जेड बाई ए नॉट की पावर 3/2 इंटू 2 माइनस सिग्मा ई की पावर माइनस सिग्मा बाई 2, एंड एंगुलर पार्ट है 1/√4 पाई। ठीक है, अब दिस हैज टू बी जीरो। ये कब जीरो हो सकता है? व्हाट इज द ओनली टर्म दैट कैन बी जीरो इन दिस? इट इज दिस पॉलिनोमियल पार्ट। सो दिस इज जीरो व्हेन sigma is equal to, sorry, when sigma is equal to 2। ठीक है, तो सिग्मा क्या है यहाँ पर? 2ZR अपॉन, यहाँ पे नोटिस करना n a नॉट, n क्या रहेगा यहाँ पर? 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे ऑर्बिटल क्या था? 2s, तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 रहेगा ना। सो यहाँ से यू गेट द वैल्यू ऑफ r एज 2a0 बाय z। सो r स्क्वायर विल बी 2a0 बाय z का स्क्वायर। तो ए ऑप्शन विल एक्चुअली बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर क्यों होगा? मान लो ये कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई एंड जेड, एंड ये कोई पॉइंट है उसमें, ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना होगा? ये वेक्टर्स में सीखा होगा ना? सीखा कि नहीं सीखा है वेक्टर्स में? ठीक है, ऑल राइट,
चलो एक थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। एक और क्वेश्चन देखो। एक इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैथ लगेगा, देखो अगर स्ट्राइक करता है तो। ट्राई करो। हाँ हर्ष, हर्ष क्या बोल रहा हूँ मैं, यश क्या पूछ रहे हो तुम? तुमने कुछ सवाल पूछा? What is x is the angular part. This is the angular wave function of s orbital, and r is the radial wave function. ठीक है। हाँ यश, नहीं सॉरी हर्ष, सिग्मा 2 कैसे आया पिछले क्वेश्चन में? अरे इस टर्म को जीरो करना है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहाँ पर जीरो होगी वो निकालना है। तो ये साई कहाँ पे जीरो होगा, तो वो, अब ये टर्म में आप नोटिस करो ना, ये कांस्टेंट है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये तो जीरो नहीं हो सकते। सिर्फ सिग्मा इज इक्वल टू 2 होने पर ये जीरो होगा ना। ठीक है, ऑल राइट। हाँ सॉरी, ये वाला करो ट्राई। इसमें तो चलो शो करना है, इसमें कुछ आंसर नहीं निकालना है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको निकालना क्या है। ठीक है, अगर मैं आपसे 2s ऑर्बिटल का रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पूछूंगा तो वो कैसा रहेगा? साई स्क्वायर आर 4 पाई r² वर्सेस r, ये वाला ग्राफ कैसा रहेगा? दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना। न्यूक्लियस पे जीरो प्रोबेबिलिटी, फार फार अवे भी जीरो प्रोबेबिलिटी, एंड बीच में एक जगह नोड होगा जहां पर भी जीरो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नाउ आपसे जो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो ये पॉइंट पूछा जा रहा है, दिस इज दिस आर स्टार। ये पूछ रहा है कि ये कौन सा डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस पर जहां पर ये मैक्सिमा आ रहा है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये मैक्सिमा का कंडीशन क्या होता है वो आपको अप्लाई करना है। नहीं आ रही, नहीं आया काम। जनरली ऐसा नहीं होता आर्यन, इज लेस लाइकली, बट हाँ मतलब कई क्वेश्चंस में आ जाता है, इट इज रेयर।
क्या कंडीशन रहता है मैक्सिमा का? dy by dx इक्वल टू 0। राइट, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या रहता है? dy by dx इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y एक्सिस पे क्या है? जो रेडियल पार्ट है मल्टीप्लाइड बाय 4πr²। ठीक है, तो यहाँ पर देखना ये साई² r 4πr², ये कितना हो जाएगा? साई का स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पर, सो 1/8 इंटू जेड बाय ए नॉट का क्यूब इंटू 2 माइनस, यहाँ पे नोटिस करना दिस विल बी जेड आर बाय ए नॉट का स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस ZR बाय 2a0 इंटू 4πr²। ठीक है, अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये y एक्सिस पर है, सो d बाई डी आर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो इसका आपको डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ऑफ दिस एंटायर थिंग। तो इसमें क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट्स को तो बाहर निकाल दो। ठीक है, एंड इतने पार्ट का आप डेरिवेटिव लो और उसको 0 के बराबर पुट कर दो। ठीक है, इसमें आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, u dv प्लस v du। तो वो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या कह रहे हो केदार? e की पावर माइनस जेड आर बाई ए नॉट। नहीं, ये 2 भी आएगा ना, सिग्मा बाई 2 रहता है ना यहाँ पर। तो जब आप इसको करोगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे तो क्वाड्रेटिक एक्चुअली आएगा। ठीक है, एंड दो रूट से यहाँ पर दो मैक्सिमा आएंगे, एक ये वाला मैक्सिमा आएगा और एक ये वाला मैक्सिमा आएगा। तो जो दूर वाला है वो आपको चूज करना है। ठीक है, नहीं नहीं सुमित, ये मेंस लेवल क्वेश्चन नहीं है भाई, बिल्कुल भी मेंस लेवल क्वेश्चन नहीं है। दीज आर ऑल एडवांस लेवल क्वेश्चंस ओनली। ठीक है, ये आपको स्ट्राइक हुआ कैसे करना है? मतलब मैं आगे का सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, यू डी वी प्लस वी डी यू लगा के you should be able to differentiate this and get the answer। ठीक है, अच्छा ऑलराइट, एक और क्वेश्चन करो। ये मैंने एक्चुअली आपके लिए रखा था लास्ट क्लास में, बट क्योंकि लास्ट क्लास में तो मौका मिला नहीं था, तो अभी करेंगे। ठीक है, ये वाला ट्राई करो। दिस इज जैसे मैंने बताया था आपको, जेई एडवांस्ड 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, नहीं करता हूँ एक्चुअली, फिर दिखेगा नहीं एक बार में। अब जैसे ये क्वेश्चन में टाइम कितना पूछ रहा है सरावी, आप इसमें मान लो ना 18 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, 18 क्वेश्चन रहते हैं टिपिकली पर आवर।
So you have roughly 4 minutes per question. ठीक है, इन एडवांस्ड. ठीक है, मेंस में थोड़ा कम हो जाता है टाइम. इसमें अभी दिख रहा है क्लियरली वैल्यूज. ठीक है, एक बार इसको देख लो, फिर उसके बाद यहाँ पे मैपिंग ही करनी है इन द क्वेश्चंस. यू हैव टू गो ऑप्शन बाय ऑप्शन. ठीक है, जैसे चलो 31st क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो. करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है इसमें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन. तो इसमें आप एक्चुअली पहले ऑप्शन बाय ऑप्शन जाओगे तो बेटर रहेगा. मतलब यू डोंट ट्राई टू सॉल्व कॉलम 1 2 एंड 3 टू स्टार्ट विद. यू गो ऑप्शन बाय ऑप्शन. ठीक है, सो यहाँ पर आप नोटिस करोगे जैसे ए ऑप्शन के थ्रू आप जाओगे तो इट कह रहा है इट मैचेस 1 विद 2, 1s ऑर्बिटल विद 1 रेडियल नोड. तो ये तो डेफिनेटली गड़बड़ हो गया. ठीक है, 1s ऑर्बिटल में 1 नोड तो होता ही नहीं है. ठीक है, देन बी ऑप्शन में देखोगे आप 4 को 4 के साथ में मैच करा जा रहा है. डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हैज एक्स वाई प्लेन एज नोडल प्लेन. ये भी गड़बड़ हो गया इसका. इफ यू रिमेंबर डी जेड स्क्वायर में यू हैव नोडल कोन्स. देन 2 2p, सो 2s ऑर्बिटल 1 रेडियल नोड. हाँ, ये मैच कर रहा है, 2 2 मैच कर रहा है. एंड देन p में एज यू कैन सी साई वर्सेस r का ग्राफ है. ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, s ऑर्बिटल रहेगा, एक नोड है तो 2s ऑर्बिटल रहेगा. एंड अप्रोचेस 0 एज r अप्रोचेस इंफिनिटी. तो यस, 2 2p ये मैच कर रहा है. ठीक है, मैं डी ऑप्शन पे नहीं जाऊंगा फिर. ठीक है, बट आई कैन स्टिल गो 3 3. तो 2pz एंड दिस कैन बी, मतलब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ cos थीटा का टर्म है. ठीक है, फिर रिमेंबर मैंने आपको बोला था कि सिर्फ cos थीटा का टर्म रहता है तो वो 2pz ऑर्बिटल रहता है. ठीक है, फाइन नहीं है इसमें. एंड बट व्हाट विल मेक दिस डी ऑप्शन इनकरेक्ट इज दैट इसमें रेडियल नोड दिखा दिया है. ठीक है, इसमें पी ऑप्शन में जाके रेडियल नोड दिखा दिया है, विच इज नॉट द केस. ओके, नाउ 32nd क्वेश्चन ट्राई करो. समय एडवांस के हिसाब से इजी आपको ऐसे लग रहा है क्योंकि मैंने अभी आपको ये फ्रेश टॉपिक पढ़ाया है ना, इसके लिए आपको याद है क्या करना है, कैसे करना है. जब 2 साल के बाद पूछेंगे, बताएंगे, तब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. हाँ, 32 में बताओ. फॉर हाइड्रोजन एटम करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा. यहाँ पे भी करेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है. ठीक है, गो ऑप्शन बाय ऑप्शन. 1 1 s, सो 1 1 एंड s. ये सो 1 के साथ 1 तो सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई थीटा एंड फाई नहीं है. दैट मीन्स s orbital, and you can see that the polynomial is not there.
कोई रूट ही नहीं है, पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो मतलब नो रेडियल नोड्स, तो वो 1s ऑर्बिटल के साथ में मैच तो कर रहा है। ठीक है, व्हाट अबाउट द s ऑप्शन, ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग जो बोर्स मॉडल के ऊपर बेस्ड है, दैट एनर्जी गैप बिटवीन 2 to 4, ठीक है, डेल्टा E between 4 and 2 is 27 by 32 times the energy gap between 6 and 2। तो आप करके देख लो, यहाँ पर 13.6 z स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर is equal to 27 by 32 into 13.6 z स्क्वायर 1/2 स्क्वायर minus 1/6 स्क्वायर। ये मैच करता है क्या? एंड आई थिंक ये मैच करेगा। ठीक है, इफ यू डू द कैलकुलेशन इट विल मैच अप। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको बीसीडी पे जाने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, अभी एक बार के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। तो 2 का 1 यहीं पे गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें एक नोड आना चाहिए था। 1 1 एंड पी, 1 1 एंड पी, 1 1 तो मैच कर रहा है, बट पी नहीं मैच करेगा ना, पी में एक नोड दिखा रखा है। 1 4 एंड आर, 1 एंड 4 यही मैच नहीं कर रहा। एक्स वाई प्लेन में नोडल प्लेन तो होता ही नहीं है, अच्छा एस ऑर्बिटल में एक्स वाई प्लेन तो नोडल प्लेन होता ही नहीं है। ठीक है, हाँ 33rd देखो, 33rd में क्या रहेगा? इसमें इनकरेक्ट पूछा है। राइट, सो हाँ मतलब इसमें सी ऑप्शन काफी गड़बड़ दिख रहा है, बाकी सब सही है। 1 का 3 के साथ में 1s ऑर्बिटल के अंदर cos थीटा तो आएगा ही नहीं, तो ये 1 से 3 मिलाकर ये ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो जाता है कि हाँ ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। राइट, ठीक है, नाउ आई थिंक you guys are good to go in terms of answering such questions that can arise from these wave functions, the wave functions and their graphs also। ठीक है, क्या कह रहे हो सुमित, कौन सा एक्सप्लेन करना है? क्यू में, क्यू में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है? आपको साइज स्क्वायर निकालना है। कहां पर निकालना है? एट r इक्वल टू 0, r की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो बेसिकली ये पूछना चाह रहा है, ये पॉइंट, ये वाई एक्सेस वैल्यू क्या रहती है इसका स्क्वायर, इनफैक्ट ये पूछना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं, चलो ये वाला कर दो, what is the probability density of electron cloud at the nucleus for 1s orbital, 1s इलेक्ट्रॉन, क्या रहेगा आंसर? सो आपको साइज स्क्वायर निकालना है
एट r इक्वल टू 0, तो ये 1/पाई a नॉट क्यूब इंटू e की पावर -0, e की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये आ गया ना बी ऑप्शन। ठीक है। हाँ प्रत्याशा क्या पूछ रहे हो, व्हाट विल मैच विद व्हाट, व्हाट विल मैच विद द फोर्थ ऑप्शन, मतलब ये dz² के साथ में, dz² के साथ में कॉलम 2 में तो कुछ भी नहीं मैच कर रहा, कॉलम 3 में भी कुछ मैच नहीं कर रहा। नो, कुछ मैच नहीं कर रहा। ठीक है, ऑल राइट, नाउ लेट मी, इनफ क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिए। आई थिंक आप लोगों को एक अच्छा आइडिया हो गया इसके ऊपर कैसे प्रैक्टिस करना है। सो देयर वाज दिस वन मोर कॉन्सेप्ट व्हिच वाज देयर इन द बुकलेट, जो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में काम आता है। ठीक है, दैट इज आल्सो समथिंग जो आप लोग एज एन ऑब्जर्वेशन याद रखना। ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, इनको जब हम साथ में प्लॉट करते हैं, ठीक है, अभी तो कैसा मैंने आपके सामने यहाँ पे इन सबको अलग अलग प्लॉट करके दिखाया था। ठीक है, what we did was we drew diagrams of different orbitals in different graphs। अब अगर मैं साथ में आपको यहाँ पे बताऊंगा तो नोटिस करना कि उसमें से कुछ टेकअवेज है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सो लेट मी टेक दैट डायग्राम। ठीक है, लेट मी टेक दिस वन। ऑल राइट, सो ये 1s 2s 2p का मैंने बनाया है। ठीक है, 3s 3p का भी इसी तरीके से बनता है, उसका छोटा हाइट हो जाता है और वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, 1s ऑर्बिटल का, देन 2s द ग्रीन वन and 2p is this red one. This is all you can say normalized into one graph in front of you. ठीक है, आपने अलग अलग से 1s का बनाना देखा था, आपने अलग से 2s का देखा था, 2p का देखा था, बट टुगेदर ये कैसा दिखेगा ये मैंने आपको बताया। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये सब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। ओरिजिन से क्यों स्टार्ट करेंगे, आप देखो ना यहाँ पर r² का टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एट ओरिजिन दिस r² विल बी 0 ना, as a result। So this is something you can think of, this is into 4 pi भी है, मतलब ये साई स्क्वायर into 4 pi r² है। ठीक है, this is what it is being discussed here. Now by looking at this graph there are couple of observations that are made, तो वो observations आप यहाँ पर ध्यान से नोटिस करना। Let me pick those observations from the booklet itself। booklet में उनके statements दिए हुए हैं, so यहाँ पर आप नोटिस करना।
So okay, so first statement is in this manner. यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, for the same value of n, ठीक है, the distance of maximum probability, उसको क्या बोल रहा है, r max, for various orbitals is inversely dependent upon the value of l. तो अगर l का वैल्यू कम होगा तो r max का वैल्यू ज्यादा होगा. तो जैसा आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n यू नोटिस 2s एंड 2p, ठीक है, एंड आप इनके r max का वैल्यू देखो, ठीक है, ये r max 2s का है और ये r max 2p का है. यू कैन सी दैट r max of 2p is closer to the nucleus than that of 2s. ये वाला छोड़ दो, ये तो ये गलत आ गया, ये मतलब कुछ और पॉइंट है. ये समझ में आया आपको? मतलब ये ऑब्जर्वेशन है, ये आया कहां से? दिस इज समथिंग विच अगेन कम्स फ्रॉम द वेव इक्वेशंस ओनली, बट उसमें से ये ऑब्जर्वेशन आ रहा है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है. इनफैक्ट इस ऑब्जर्वेशन की वजह से, ठीक है, आप नोटिस करना that there is an important point that comes in. That within a subshell, ठीक है, यहां पर नोटिस करना, within a shell you can say that between 2s and 2p, ठीक है, और what I should say is that in fact I should write that down here only in terms of this thing. So if you notice that 1s का जो एरिया अंडर द ग्राफ आप देखोगे, ठीक है, ये ग्राफ है, इसके अंडर का एरिया जो है इट इज, मतलब सबके अंडर का टोटल एरिया क्या होगा? टोटल एरिया अंडर एनी ऑफ दीज ग्राफ्स, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बोला था कि 0 से इंफिनिटी का अगर इंटीग्रल करना है मुझे तो ये 1 आएगा, ठीक है. एरिया अंडर द ग्राफ represents the probability of finding an electron. तो अगर मैं टोटल एरिया कंप्यूट कर रहा हूँ within any of the curve, that should be 1. That will give me the probability of finding the electron between 0 and infinity, ठीक है. Now यहां पर आप नोटिस करना कि ये जो 1s का इलेक्ट्रॉन है, दिस इज, इसका जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, it kind of is maximum closer to the nucleus. मतलब this is very much likely to be found close to the nucleus, ठीक है. So this area under curve highlights that 1s electron
are much more closer to the nucleus. ठीक है. Now अब यहाँ पर नोटिस करना जो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आएगा between 2s and 2p. ठीक है. So 2s and 2p में because of the presence of this local maxima, ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करना, let me kind of highlight it using this. ठीक है. Because of the presence of this local maxima, 2s and 2p के बीच में closer to the nucleus, ठीक है, 2s के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है as compared to 2p. ठीक है. सो यहाँ पर because of this, I should say, the local maxima, we can say that 2s electron experience greater nuclear attraction. Greater nuclear attraction than 2p. Now इस चीज को एक नए टर्म के फॉर्म में मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में कई जगह पर यूज होगा. ठीक है. अपनी बुकलेट में भी उसी टर्म्स में लिखा हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना. पेनिट्रेशन पार. ठीक है. देयर इज दिस टर्म called as, let me put the term first here. So यहाँ पे नोटिस करना, the term is called penetration power. It is a measure of closeness to the nucleus. ठीक है. So within a shell, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 2s 2p का डायग्राम बनाया. ठीक है. 3s 3p 3d का भी बना सकता था बट वो थोड़ा ज्यादा क्लटर हो जाता है. तो यहाँ पे 2s 2p में उसी तरीके से within within the shell, the 3s electrons, they are going to spend time, or they are going to spend more time near to the nucleus as compared to 3p and 3d. So we will say that 3s का penetration power or the 3s का closeness to the nucleus, ठीक है, will be much more than that of 3p, will be much more than that of 3d. ठीक है. This is something which comes from these diagrams, these radial distribution curve के diagrams. ठीक है. How we will be using in periodic properties chapter वो मैं बताऊंगा जब हम लोग shielding effect पढ़ेंगे. When we'll be talking about this concept of screening or shielding, then I will relate this penetration power with the screening or shielding concept. ठीक है. ये इतना पार्ट समझ में आया आपको from this observation, actually I should say, from this radial distribution curve. ठीक है. So ये दो important takeaways थे. ठीक है.
Now, keeping this in mind, आप लोग एक FBO का क्वेश्चन भी कर सकते हो. Let me put that FBO का question also in front of you. ठीक है, वो क्वेश्चन पहले नहीं समझ में आता है. अब जब मैंने आपको ये टर्म बताया है, so I think you would be able to now relate with this question. FBO का एक क्वेश्चन है ये. The distance of maximum probability for 3s 3p 3d, ये किस ऑर्डर में रहेगा? Right, so इसमें this concept will follow through, that L increase होगा तो distance decrease होगा. ठीक है, this would be the correct answer. If I was to plot them together, ठीक है, if I was to plot them together in one graph, then how would they look like? मैं आपको दिखाता हूँ एक बार. ठीक है, in fact not together, but हाँ, एक ही स्केल पर अगर ड्रॉ करेंगे तो ये बुकलेट का आप ऑब्जर्व करोगे, ये 3s का, ये 3p का, ये 3d का है. ठीक है, the R max value will be lesser for 3d. ठीक है, all right. Now एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है. ठीक है, हाँ, हर्ष कुछ कहना चाह रहे हो? यस सर. हेलो सर. बोलो बोलो. सर तो हमको ये मेजर करने के लिए कि किसका आर मैक्स ज्यादा होगा, अब जो इनिशियल देखते हैं, इनिशियल पॉइंट ना ओरिजिन के पास वाला, कि ज्यादा ऊपर कौन जा रहा है. नहीं नहीं, हाइट नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एक्स एक्सिस देखना है अपने को. ओके सर. डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इज दिस is on the x axis ना. ओके सर. ओके सर. ठीक है सर. ठीक है, now see the thing is that all these graphs, ठीक है, they are something जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है. तो आपके सामने इक्वेशंस है, ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि ये इनके एंगुलर पार्ट और ये इनके रेडियल पार्ट के इक्वेशंस हैं. अब आप चाहो तो उनको प्लॉट करते जाओ और उनसे फिर डिसाइफर करो क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं. ठीक है, बट रादर देन you doing that from grounds up, you doing that from the scratch, I am highlighting the key observations that are there. ठीक है, ये observations kind of आपके लिए एक तरीके से रट्टा मारने जैसा ही हो गया, because you have not done the derivation. ठीक है, you can very well do the derivation. ठीक है, मतलब आपको अगर चाहिए, ठीक है, अगर आपको इसको डिराइव करना है तो मैंने आपको 3s का रेडियल वेव फंक्शन लिख के दिया हुआ है, 3p का रेडियल वेव फंक्शन लिख के दिया हुआ है, 3d का रेडियल वेव फंक्शन लिख के दिया हुआ है. ठीक है, तीनों का आप क्या करो, साइज स्क्वायर बनाओ, 4 पाई r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो एंड फिर डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू r. ठीक है, और उसको 0 पुट कर दो. आप जब 3s के लिए करोगे तो उसमें क्यूबिक आएगा और उसके 3 रूट्स आएंगे which will give you the values of these 3 maxima का locations. and उसमें जो furthest वाला है वो आप चूज करना. फिर यही एक्सरसाइज 3p के लिए करो, उसमें क्वाड्रेटिक बनेगा and you will be able to get these values जहाँ पे मैक्सिमा आएगा. and then 3d के लिए करो. ठीक है, आप वो करो और फिर उसके बाद निकालो और कंपेयर करो. तो ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका ग्राउंड अप तरीका हो गया.
which I am asking you not to do because observation important है right now rather than deriving it. ठीक है? All right. Now just एक last closing topic के बारे में बात कर लेता हूँ. This will be something also that I planned in the last class only. आप लोगों ने बुकलेट में क्वेश्चन पढ़ा होगा कहीं पर, तो जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट करके कुछ टर्म्स आए होंगे. ठीक है? सो क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ. ठीक है? ध्यान से ऑब्जर्व करना इसको रीड करने के पहले. ठीक है? बिफोर यू रीड दिस, let me explain to you. See, you have say a source. ठीक है? सोर्स ऑफ रेडिएशन. ठीक है? लेट्स से आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करना है. ठीक है? तो आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करने के लिए क्या करा, आपने यहाँ पर एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स लिए और उनसे जो रेडिएशंस आ रहे हैं वो एक प्रिज्म के थ्रू पास कराए और एक स्क्रीन पर वो स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया. ठीक है? एंड दिस इज व्हाट वी स्टडीड इन दिस चैप्टर, in the middle of this chapter. ठीक है? Now what happened was that when this hydrogen sample, ठीक है, it was exposed to an external magnetic field. ठीक है? इस let's say ये जो हाइड्रोजन एटम्स है इसके अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया. ठीक है? एंड देन फिर स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया गया. ठीक है? यहां से निकलने वाले रेडिएशंस ऑब्जर्व किए गए. तो उसमें क्या समझ में आया कि जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ था तो जो एक सिंगल लाइन थी, ठीक है, और जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन करा तो इंस्टेड ऑफ दैट सिंगल लाइन उसके आसपास लाइंस बनने लग गई. ठीक है? तो यहां पर what was understood was that जब magnetic field नहीं था, ठीक है, when there was no magnetic field, ठीक है, then corresponding to a de-excitation wavelength was observed. ठीक है? जो बोर्स मॉडल एक्सप्लेन भी कर रहा था. बट यहां पर जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ठीक है, then instead of lambda 1, ठीक है, what we found out was that lambda 1 kind of split into close by lines. मतलब we started finding lambda 1 dash, lambda 1 double dash, lambda 1 triple dash, and these were very close to lambda 1 only. This was not something that was explained by Bohr's model. ठीक है? And we call this as Zeeman effect. ठीक है? अब यही चीज instead of मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो उसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं. स्टार्क इफेक्ट वाज समथिंग व्हिच वाज ऑब्जर्व्ड बाय अ साइंटिस्ट, नॉट टोनी स्टार्क, बट ऑब्जर्व्ड द सेम फिनोमेना यूजिंग एन external electric field. ठीक है? So this was something that became one of the drawbacks associated with Bohr's model. ठीक है? That it cannot explain Stark effect and Zeeman effect. What is Stark effect and Zeeman effect? Stark effect and Zeeman effect is, in simple word, splitting of spectral lines under an external electric field or under an external magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड है तो स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है? अब यहां पर आप पैराग्राफ रीड करना. ठीक है? हाँ,
तो ये पैराग्राफ बताएगा कि स्प्लिटिंग क्यों होती है। तो अब यहाँ पे पैराग्राफ आप रीड करोगे, लेट मी जूम इन अ बिट। सो व्हाट द पैराग्राफ सेज इज दैट a sharp spectral line from 3 to 2 in hydrogen atom, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में 3 to 2, ये बामर सीरीज का लाइन है, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। it split into multiple closely spaced lines when external magnetic field was applied, ठीक है। this was first observed by Peter Zeeman and this splitting was attributed to interaction between magnetic field and magnetic dipole moment associated with the orbital angular momentum, ठीक है। बिल्कुल समझ नहीं आया होगा आपको। what you can understand, ठीक है, what you can kind of simplify from all this magnetic jargon that is mentioned here is that because of the external magnetic field, पहले हम लोग क्या बोल रहे थे कि लेट्स से 3D के पांचों ऑर्बिटल्स का सेम एनर्जी है, ठीक है। जैसे 3D है, 3D के 5 ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल जो दिखाया जा रहा है यहाँ पर, पहले कैसा बोल रहे थे कि 3DXY, 3DYZ, 3DZ², 3DX² - Y², ये सब क्या है, सेम एनर्जी के हैं। बट बिकॉज ऑफ अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में भी डिफरेंस आ गया, एनर्जी डिफरेंस आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, दिस स्प्लिटिंग इज एट्रीब्यूटेड टू समथिंग समथिंग विच यू कैन सिंप्लीफाई एज एन अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर आप नोटिस करना, ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते, दैट इज 3D orbitals are no longer degenerate, ठीक है, in presence of an external magnetic field, ठीक है। तो 3D orbitals यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो they have different energy levels now, and उनसे जब ट्रांजिशन होकर लेट्स से यहाँ पर ये 3D से, ठीक है, दिस करस्पॉन्ड्स टू अ ट्रांजिशन फ्रॉम 3D टू 2P। ये 2P के भी जो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, 2Px, 2Py, 2Pz, ठीक है, ये भी अलग अलग एनर्जी लेवल्स हो गए एज कंपेयर टू बीइंग द सेम एनर्जी लेवल। वी सॉ different spectral lines now, ठीक है, which were close but distinguishable, ठीक है। सो यहाँ पर क्या था, in the absence of magnetic field the energy depend only on principal quantum number, ठीक है, इसी वजह से एक ही लैम्डा दिख रहा था। but in the presence of magnetic field these were no longer degenerate, ठीक है। तो ये जीमन इफेक्ट समझ में आया। अब साथ ही साथ में नोटिस करना एक और कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज सिलेक्शन रूल, ठीक है। तो यहां पर आप नोटिस करना दैट जब ये स्प्लिटिंग हुई, ठीक है, जब ये स्प्लिटिंग हुई देन 3D के 5 ऑर्बिटल्स और 2P के 3 ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक है, जितने पॉसिबल ट्रांजिशंस हो सकते थे, जितने पॉसिबल डी एक्साइटेशंस हो सकते थे, वो सारे नहीं ऑब्जर्व हुए, ठीक है। जैसे आप नोटिस करोगे कि यहां पर ये टॉप वाली लाइन से, ठीक है, सिर्फ यहां का ट्रांजिशन ऑब्जर्व हुआ, दिस और दिस वाज नॉट ऑब्जर्व्ड, ठीक है। या फिर आप नोटिस करोगे कि ये ml = 1 से
ml इक्वल टू 1, ml इक्वल टू 0 ऑब्जर्व हुआ, बट ml इक्वल टू -1 नहीं ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, so there were certain transitions that were observed, whereas certain transitions were not observed, and this was something which was then studied and found out that based on, ठीक है, based on certain rules of conservation of momentum, conservation of spin, ठीक है, there are certain transitions which were forbidden, ठीक है, or highly improbable, and certain transitions were allowed, ठीक है। These transitions which were allowed followed these rules, ठीक है, and these were called as selection rules, ठीक है। कहाँ से आते हैं ये रूल्स, ठीक है, इनकी डेरिवेशन में आप नहीं जा सकते, दे आर काइंड ऑफ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं बस ऊपर ऊपर से आइडिया दे रहा हूं आपको, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड स्पिन, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन और फोटोन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इनिशियल स्टेट, इलेक्ट्रॉन का फाइनल स्टेट, एंड फोटोन जो कि अब्सॉर्ब हुआ होगा या एमिट हुआ होगा, इन तीनों को कलेक्टिवली एक सिस्टम मान के एनालाइज करके समझ में आया that why only certain transitions were allowed and certain transitions were not happening, ठीक है। So based on this, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल which of the following transition is forbidden, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल this is the question in front of you, which of the following transition is forbidden, then what you need to do is simply follow these rules, ठीक है। जैसे 2s से 1s, ठीक है, 2s से 1s के अंदर इफ यू विल नोटिस डेल्टा एल जो होगा वो 0 आ गया, ठीक है, l इक्वल टू 0 से l इक्वल टू 0 पे ही जा रही है, तो डेल्टा l इज 0। नाउ इज इट अलाउड, द आंसर इज नो, इट इज नॉट अलाउड, तो इट इज फॉरबिडन। 2p से 1s डेल्टा l कितना आ रहा है, -1, इज इट अलाउड, द आंसर इज इट इज अलाउड। डेल्टा l यहाँ पर -1, d का l जो रहेगा वो 2 रहेगा, p का l 1 रहेगा, इट इज ऑल्सो अलाउड। 3p से 2s डेल्टा l यहाँ पर -1 रहेगा, राइट, दिस इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है। अगर इनफैक्ट मैं यहाँ पर लेट से एक ई ऑप्शन बना देता, से 3d से 2s, तो यहाँ पर डेल्टा l कितना दिखता आपको, डेल्टा l would have been 2, this would have not been allowed, डेल्टा l प्लस या -1 ही अलाउड है, ठीक है। अच्छा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांजिशन इज के अल्फा, के अल्फा मतलब क्या हो गया, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब 1 पर n इक्वल टू 1 पर डी एक्साइटेशन होना चाहिए 1s पर, तो ए और बी ऑप्शन में से सोचना पड़ेगा। अब ए तो अलाउड नहीं है एंड बी अलाउड है, ठीक है, बिकॉज बी फॉलोज द ट्रांजिशन, ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये एक लास्ट टॉपिक था जो मैं आप लोगों के साथ में कवर करना चाह रहा था, जीमन इफेक्ट। तो बहुत सिंपल सा है, जीमन इफेक्ट इज सिंपली स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन will be
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड उससे ही फिर ये सिलेक्शन रूल समझ में आया ऑफ विच ट्रांजिशंस आर हैपनिंग एंड विच ट्रांजिशंस आर नॉट हैपनिंग, ठीक है। तो ये सिलेक्शन रूल भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये आपको बुकलेट में नहीं मिलेगा, दिस इज नॉट देयर इन द बुकलेट, ठीक है। नाउ दिस कंप्लीट्स ऑफ द चैप्टर, ठीक है, ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। जो मैंने बुकलेट के डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो आप लोगों के साथ में मैंने ऑलरेडी अभी while discussing in the class कवर कर लिए हैं, तो you should not face much of difficulty while solving the remaining of the booklet, ठीक है। now रहा सवाल नेक्स्ट चैप्टर का, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। उसके लिए मैंने आपको बोला है दैट वीडियो लेक्चर्स देख के आना, सुन के आना, एंड उसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात भी हाईलाइट कराई है, ठीक है। दैट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द थ्योरेटिकल नेचर ऑफ द चैप्टर, ठीक है। that when you will be, you know, discussing this chapter of periodic properties, in that you will find certain trend being explained by multiple factors, and when there are multiple factors, right, usme you know, which factor dominates is not something that is a very quantitative exercise, you know, एक पर्टिकुलर फैक्टर का 10% वेटेज है, दूसरे फैक्टर का 50% वेटेज है, राइट। क्वांटिटेटिव तरीके से नहीं डिस्क्राइब करा जाता, सब्जेक्टिव रहता है, तो दैट सब्जेक्टिव नेचर इज गोइंग टू बी अ लॉट इन दैट चैप्टर, ठीक है। सो प्लीज एंश्योर दैट यू आर यू नो कीपिंग दैट सब्जेक्टिव नेचर ऑफ द चैप्टर इन माइंड, इंश्योरिंग दैट यू नो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर ओनली, ठीक है। सो आई हैव टेकन टुडेज डे एज अ एक्सेप्शन नॉट टू स्टार्ट विद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर, बिकॉज आप लोगों में से काफी लोगों ने वीडियो देखा नहीं है, तो वो आप वीडियो देख के आओ एंड देन यू नो वी विल बिगिन दैट डिस्कशन, ठीक है। हाँ, अभी इसमें क्या क्या डाउट है आप लोगों के? सो प्रत्याशा, यू वांट टू डिस्कस एक्सपर्टीज अटेनर का कोई क्वेश्चन, तो ठीक है, आप मेरे साथ में शेयर कर दो, मैं आपको भेज दूंगा उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देन एक मिनट एक एक करके तुमने एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन भेज दिए। देन अब्रुनील का डाउट है, कैन यू एक्सप्लेन द सिलेक्शन रूल का ट्रांजिशन थिंग अगेन। सिलेक्शन रूल इज समथिंग जो आपके सामने लिखा हुआ है, दैट बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स अ ट्रांजिशन इज गोइंग टू बी अलाउड और फॉरबिडन, ठीक है। सो इफ यू गेट अ question in front of you, which transition is forbidden or which transition is allowed, just check for these set of rules, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट में 3D से 2S का ट्रांजिशन बोला, तो 3D से 2S के ट्रांजिशन में डेल्टा L कितना आ गया 2, क्योंकि S का L वैल्यू 0 रहता है, D का L वैल्यू 2 रहता है, ठीक है। तो इनफैक्ट 2 क्या बोलना चाहिए मुझे, -2 बोलना चाहिए, -2 आ गया, तो दैट इज नॉट अलाउड। डेल्टा L कैन बी ±1 ओनली, ठीक है। All right, then हर्ष का तो खैर जनरल डाउट है। टेस्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट, हाँ हम लोग रख लेंगे, डोंट वरी, विल कीप अ टेस्ट। देन यश क्या डाउट है, इन दिस क्वेश्चन इट वाज गिवन n + l = 7, then it was possible to find the
maximum number of electrons possible in the atom. नहीं, मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपका. मैं अनम्यूट करूं, आप बोलोगे कुछ फिर. एक बार हैंड रेज करना ना अपना. हाँ बोलो यश. वो डीपीपी का एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विद n+l इक्वल टू 7. अच्छा अच्छा अच्छा. तो अब आप मतलब काउंटिंग करना शुरू करो ना. क्रूड काउंटिंग लगेगी, फॉर्मूला नहीं है. सो n इक्वल टू 1 लो, फिर उसके लिए l के कॉम्बिनेशन लो, n इक्वल टू 2 लो, l के कॉम्बिनेशन लो, एंड यू विल फाइंड पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस वेयर n plus l is 7. ठीक है. तो corresponding to that you count the orbitals and then the number of electrons. ओके सर. ठीक है. All right. सुमित, डीपीपी के सॉल्यूशंस तो डीपीपी के नीचे है ना. दे आर मेंशन्ड इन एट द बॉटम ऑफ द डीपीपी. उसमें अगर तुम कहीं पर अटक रहे हो तो एक बार उनको रेफर करो, और फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो, डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. ऑल राइट. ठीक है. देन लेट्स क्लोज टुडेज लेक्चर. Next class will start with periodic properties. Thank you guys.